السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 23۔ اب میں جس فنکار کو گانے کی دعوت دے رہا ہوں وہ ایک نوجوان اور شوقیہ فنکار ہے۔ اس نے آج تک کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیا۔ اسے پہلی بار سامعین کے سامنے لانے کا اعزاز میں حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ایک نئی اور اچھی آواز ہے۔ آپ اسے اور مجھے بھی یقیناً سراہیں گے۔ یہ نگینہ میں نے کہاں سے دریافت کیا، مجھے کہاں سے ملا، بہرکیف آپ سنیں دیکھیں۔ جب انیل پرکاش اسٹیج پر پردے کے پیچھے سے نوارد ہو کر سامنے آیا تو وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح بڑی شان اور تمکنت سے کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک گیت سنانا شروع کیا تو تمام سامعین مسحور ہو گئے۔ اس نے تمام گلوکاروں کا سحر ماند کر دیا۔ جب اس نے اپنا گیت ختم کیا تو وہ سب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پرجوش تالیوں سے اسے داد دی۔ اس کی پذیرائی اور ونس مور ونس کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب پروگرام کے اختتام پر وہ اسٹیج سے نیچے آیا تو اسے لڑکیوں اور عورتوں نے گھیر لیا۔ اس سے آٹوگراف لیے۔ ایک نوجوان لڑکی جو امریکہ میں 10 برس رہ کر لوٹی تھی، اس نے سب کی موجودگی میں انیل پرکاش کو چوم لیا۔ ایک اور لڑکیوں نے یہ حرکت کی تو ایک شادی شدہ عورت بھی باز نہ رہ سکی تھی اپنے آپ کو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انیل پرکاش نے دولت، شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ پھر اس نے کئی لافانی نغمے عوام کو دیے اور لوگ اسے دیوتا کی طرح پوجنے لگے۔ انیل پرکاش ایک تو بہت خوبصورت اور وجیح تھا، دوسرا اس کی شہرت کا چرچا تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں ایسے فنکاروں پر مرتی ہیں، اپنا دل ہی نہیں اپنا تن من بھی نچھاور کر دیتی ہیں۔ وہ کفران نعمت کیوں کرتا، بہتی گنگا میں ہاتھ کیوں نہ دھوتا۔ یہ بیوقوف لڑکیاں اور عورتیں اس پر خوب مہربان تھیں اور وہ ان سے اور ان کی فیاضی سے خوب فائدہ اٹھاتا، لیکن ان سے محبت نہ کرتا۔ اس عرصے میں گوپی ناتھ بدستور اس کے ساتھ نتھی رہا، اور وہ بھی ایک خوبصورت اور پرکشش نوجوان شخص تھا۔ گوپی ناتھ اور انیل پرکاش اس لیے بھی یک جان اور دو قالب بن گئے تھے کہ گوپی ناتھ نے اسے لافانی گیت اور نغمے لکھ کر دیے۔ انیل پرکاش کی بے پناہ آمدنی تھی۔ وہ فلیٹ میں اس لیے نہیں رہتا تھا کہ اس کے پرستار اور لڑکیاں دن رات تنگ کرتیں اور اس سے ملنے اور وقت گزاری کے لیے ماہیوں بے آب کی طرح تڑپتی رہتیں۔ وہ ٹیکس بچانے کے لیے بھی کولیٹ ہوٹل میں رہائش پذیر تھا۔ گوپی ناتھ کا سوٹ بھی اس کے سوٹ سے منسلک تھا۔ گوپی ناتھ کو بھی اس کے نغمے کی بے پناہ رائلٹی ملتی، اور ان کی مثالی دوستی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ غسل خانے میں بھی اکٹھے ہی غسل کرتے ہیں۔ رتنا کی باتوں سے بھی ان دونوں کی بے مثال دوستی ظاہر ہوتی تھی۔ تاہم مجھے حیرت تھی کہ ناکامی کے بعد بھی گوپی ناتھ کے دل میں انیل پرکاش کی لاسانی کامیابی کے خلاف غم و غصے یا رشک جذبات کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ کیا انیل پرکاش کوئی جادوگر تھا جو اس نے گوپی ناتھ پر جادو کر رکھا تھا، یا گوپی ناتھ ان لڑکیوں سے فائدہ اٹھاتا تھا جو انیل پرکاش کے ساتھ وقت گزاری کرتی تھیں؟ میں جب اس گڑیا سی رتنا کو ناشتے کی میز پر لے گیا تو اس نے سینڈوچز کھانے کے بعد کافی بنائی، اور میں نے جو کافی بنائی تھی وہ اس کے آنے سے ٹھنڈی ہو چکی تھی، کیونکہ باتوں میں خاصا وقت صرف ہو گیا تھا۔ اور جب وہ کافی پی کر رخصت ہونے لگی تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آج رات یا کل صبح اپنی تحقیقات کے نتائج سے اسے مطلع کر دوں گا۔ جانے سے پہلے میری نانا کے باوجود 5000 کی رقم ادا کر گئی، صاف و شفاف اور پاکیزہ لہر سے نواز گئی، اور اس طرح اس نے مجھے گوپی ناتھ کی موت کی تفتیش کے لیے پابند کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ فی الحال میرے پاس کوئی کام نہ تھا، اور اس کیس میں کسی سنسی خیزی کا شائبہ دکھائی نہ دیا۔ بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ کیس معلوم دیتا تھا۔ تاہم 2 ہفتوں کے بعد
एक केस हाथ में लेकर मुझे खुशी हुई। और यूं तो मेरे लिए रुपयों पैसों की कोई कमी न थी। मैं 10 वर्ष भी पुरतऐश ज़िंदगी गुजार सकता था चेन्नई में, और मैंने लाखों कमाए थे और सरिता ने $10,000 दिए थे। 2-1 केसों में और भी मेरी चांदी हुई। सजाता केस जो थोड़ी देर का था, उसमें 60,000 की रकम हाथ लगी, वरना उससे पहले तो मैं सारा वक्त 3 दिन और होने वाले इलेक्शन की सरगर्मियों में गुजार दिया था, यानी उसकी तफसील जानता फिर रहा था। सजाता के साथ जो वक्त गुजरा उसने मेरी बोरियत दूर कर दी। अब इलेक्शन की गर्मियों के साथ साथ एक केस का मुंह का बदा बदलने के लिए बहुत था। 2 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला हो रहा था। अमूमन हर इलेक्शन में ऐसा होता है। हर तरफ कृष्णा और गोपाल के नारे सुनाई दे रहे थे। फिजा में वही तनाव और कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई थी जो इंतखाबात के ज़माने में माहौल पर मुसल्लत रहती है। सियासी पार्टी के कारकुनों और उनके शहदाई जो होते थे वो बेहद जज्बाती होते थे, और उनके जोशो खरोश का जो आलम होता इंतखाबात का नतीजा आने तक कायम रहता। वो मुखालिफ की जान लेने और अपनी जान नज़र करने पर तैयार रहते। ये एक ऐसा अंधा जुनून था जो नुकसान का बायस भी बन जाता, और वो जोश और जज्बात के आलम में ये बात भूल जाते कि जब उनका उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो वो उनकी तरफ देखता भी नहीं, मिलता भी नहीं। इलेक्शन के दिनों जो दरवाजे खुले रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उन्हें सिर्फ इलेक्शन के दौरान अच्छा खाना पीना और कुछ रकम मिल जाती थी, बाद में टाएं फिश। यूँ तो कई पार्टियां थी, कई उम्मीदवार थे। असल मुकाबला तो देवेश की सबसे बड़ी 2 सियासी पार्टियों के दरमियान था। एक उम्मीदवार का नाम बिसल राय था और वो एक चोटी का वकील था। उसने बहुत बड़े बड़े केस जीतकर अपना नाम पैदा किया हुआ था, और वो हर केस की फीस भी एक फिल्मी हीरो की तरह लेता था। वो केस जीतने की ज़मानत भी देता, लेकिन ये शख्स बड़ा चर्ब ज़ुबान और तरार था, और आवाम को ऐसे खूबसूरत बाग दिखा रहा था जो अमली तौर पर नामुमकिन होने के बावजूद आवाम के लिए दिल फरेब और पुरकशिश थे। वो कि आवाम में सियासी शऊर और बेदारी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद सादा लो और जज्बाती थी, और वो इसलिए चकनी चुपड़ी बातों में आ जाते कि उन्हें एहसास महरूमी और माली मुश्किलात और महंगाई ने दबोच रखा था। दूसरी तरफ चंदर सिंह था जो बिसल राय की तरह लच्छेदार तकरीर कर सकता था, और ना ही उसकी तरह खूबसूरत और फरेब का राना वादों के महल तामीर कर सकता था। ना उसे सब्ज़ बाग दिखाने का फ़न आता था, और ना ही वो अवाम के जज्बात से खेलता था। वो अवाम के झूठे वादे करना और धोखा देना बहुत बड़ा पाप समझता था, और वो मामूली शक्ल सूरत का मस्कीन सा शख्स था। उसके बशरे से ज़ाहिर होता था कि वो किस कदर सीधा सादा और बेलौस आदमी है। आदमी क्या है, चेहरे और बातचीत से भी ज़ाहिर हो जाता है। आवाम की गुर्बत के सिवा उसे बिसल राय से हर मामले में इख्तलाफ था, और उसने आवाम से झूठे वादे नहीं किए थे। उसने कहा था कि उसके हाथ में अलादीन का चिराग और देव नहीं है, लेकिन आवाम का साथ हो तो कोई बात नामुमकिन नहीं। आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं। आवाम तावन करें तो उसकी हुकूमत और उनके सपनों और मुद्दों को पूरा कर सकती है, लेकिन ये एक दिन में मुमकिन नहीं। वो दोनों उम्मीदवार मुल्क के तूफ़ानी दौरे पर निकले हुए थे। आज वो मुंबई का दौरा कर रहे थे, क्योंकि उसके हलके की राय दहिंदगान इंतखाबात के नताइज पर फैसला कुन असर अंदाज हो सकते थे। इतवार को दिल्ली का दौरा करना था, और फिर सोमवार यानी इलेक्शन से एक दिन पहले उन्हें आखिरी इंतखाबी तकरीर करना थी। ये इंतखाबी इलेक्शन का शेड्यूल था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरफ़ीन की तरफ से धुआंधार तकरीरों के बम बल्कि एटम बम दागे जा रहे थे। फ़रीकीन दलाइल व बराहीन के असला से लेस होकर एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। कुछ शवाहद पेश किए जा रहे थे, कीचड़ उठाल रहे थे, करदार कशी की जा रही थी, मसाले दी जा रही थी, ज़ातियात पर हमले हो रहे थे। एक तरह से खुली छूट मिली हुई थी। आज पानी का मसला गर्मा गर्म और जोशीली तकरीरों का मौजू बना हुआ था। बुनियादी इख्तलाफ एक हद तक
मज़का खेद और अजीब सा था। बिसल राय का ये बयान था कि साइंसदानों का मुतफ़क़ा फ़ैसला है कि पानी में फ्लोरीन दवा मिलाने से दांतों की बीमारियां ख़त्म की जा सकती हैं। दूसरी तरफ चंद्र सिंह इस बात पर जोर दे रहा था कि अगर पानी में फ्लोरीन की आमेज़श की गई तो उससे मासूम बच्चों और ज़ईफ़ों के दांतों से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसलिए फ्लोरीन की आमेज़श लाजमी ना होनी चाहिए। अपनी अपनी बात की सदाकत साबित करने के लिए हर फरीक को बड़ी दौर की सूझ रही थी। सुनने वाले जैसे दोराहे पर खड़े हो गए। मैं ज़ाती तौर पर चंद्र सिंह का तरफदार था और मुझे अगर किसी इज्तिमा में तकरीर के लिए दावत दी जाती तो मैं सबसे पहले यही कहता, भाइयों, नित नई बीमारियों का आलम वजूद में ला रही हैं। इंसान के दुख और रोग आए दिन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा सादा पानी को सादा पानी ही रहने दिया जाए और उसे कम से कम मिलावट से आलूदा तो ना करो। ऐसी ही रिक्कत खेज तकरीर को जहन में तरतीब देता हुआ मैं उभर सा गया और फिर मैंने केस पर तवज्जो दी और फिर कुछ याददाश्तों के सहारे और कुछ पुराने अखबारों की मदद से अपने केस पर सर खपाया। पुलिस का बयान था कि गोपीनाथ की मौत को हादसाती मौत ही करार दिया जा सकता है और उसे कत्ल की वारदात कहना अहमकाना सी बात होगी, क्योंकि वो बालकोनी की रेली पर से फिसला और 8 मंजिलें नीचे आया। इस रुदाद में गोपीनाथ की बेतहाशा हंसने की कोई खबर ना थी, जिससे यह ज़ाहिर होता कि वह मौत से कबल दीवानगी के आलम में था। चुनाचा ये ज़रूरी था कि मैं उसके मालज डॉक्टर मुखर्जी से रजू करूं, जो उसका दिमागी मालज था और जिसका रत्ना ने जिक्र किया था और जिससे गोपीनाथ अपना जहनी इलाज करा रहा था। वो गोपीनाथ की जहनी बीमारी के मुतल्लिक ठीक बता सकता था। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से डॉक्टर मुखर्जी का फ़ोन नंबर नोट किया। वो बहुत मसरूफ़ तरीन डॉक्टर था और उसे मुलाकात के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था। मैं उससे वक़्त लेने में कामयाब हो गया, क्योंकि एक मरीज़ ने अपना वक्त मुलाकात मनसूख करवा लिया था। वो वक़्त मुझे दे दिया गया। मैंने उसे अपना नाम सिर्फ मिस्टर देवा कुमार बताया और उस पर यह ज़ाहिर नहीं किया कि मैं एक प्राइवेट सुराग नसा हूँ और गोपीनाथ के केस पर काम कर रहा हूँ। अगर मैं उसे ये बता देता तो डॉक्टर मुखर्जी मुझसे मुलाकात का वक़्त हरगिज़ ना देता। और उसके बाद मैंने जगदीप मोहन एंड सन्स को फ़ोन किया। जवाब में उसकी सेक्रेटरी दिलकश और इठलाती हुई आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ से तस्वर में उसका हसीन खाका उभरा। ये बहुत खूबसूरत और तरादार मालूम होती थी और फिर वो कदरे शौक मजाज लड़की थी। ऐसी लड़की जल्द राग़िब हो जाती है। वैसे बहुत तेज़ और तरादार थी। यहाँ मुझे अपना पूरा नाम, पेशा और इख्तिसार से हालात ज़िंदगी और अपना हुलिया बताने के बाद भी ये वाज़ेह करना पड़ा कि मैं गोपीनाथ की मौत के सिलसिले में मिस्टर जगदीप मोहन से मिलना चाहता हूँ। बड़ी मेन मेख और रद्दो कदा के बाद उसी दिन यानी हफ्ता के से पहर 1:30 बजे का वक्त दिया गया और फिर मैंने अनिल प्रकाश को फ़ोन किया, मगर यहाँ पर कोई कामयाबी ना हुई। उसकी सेक्रेटरी ने यह कहकर टाल दिया कि वो कई दिनों तक मिल नहीं सकते। 1 बजे के फ़ौरन बाद मैं जगदीप मोहन सिंह के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। ये एक एजेंसी थी जो हिंदुस्तान में बड़ी मतमूल और बाअसरात शुमार होती थी और उसका असर सोख मुल्क भर में पंजे फैलाए हुए था। और उसकी वजह फनकार ही नहीं थे, बल्कि खुद जगदीप मोहन था, जो चोटी के सियासतदानों, नुमाइश गंदगान, नाशरीन, मुमताज़ आलमों और एक सियासी जमात के कारकुनों में यकसा मकबूल और मारूफ था और उसकी बड़ी इज्जत और पजीराई की जाती थी। उसकी एजेंसी की खिदमत सिर्फ फ़नकारों की हद तक महदूद ना थी, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हीन अफराद उस एजेंसी के मुवक्किल थे। एजेंसी ने दर्जन के करीब मुवक्किलों से काम का आगाज़ किया था, जिनमें आधी दर्जन के करीब पहले ही नाम पैदा कर चुके थे और उनमें 2 नावलिस्ट भी थे और एक ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में नावलें लिखकर ना सिर्फ नाम पैदा किया था बल्कि दौलत भी कमाई थी, दूसरा हिंदी ज़ुबान में। और उनकी नावलें हिंदुस्तान की तमाम ज़बान
ہارڈ کیک کی طرف فروخت ہوئی تھی بلکہ آج بھی ہو رہی تھی، اور ان کی متعدد ناولیں فرینچ اور اس کی زبان کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں بھی شائع ہوئیں۔ اور ایک ڈرامہ نگار تھا جو ٹی وی کے لیے سلسلہ وار ڈرامے لکھ رہا تھا، ایک سیاسی رہنما جو کمیونسٹ تھا۔ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ آسام اور مغربی بنگال میں بھی بے حد مقبول تھا، اور اسے سال میں 2 مرتبہ روسی حکومت سرکاری سطح پر مدعو کرتی، اور ایک اداکارہ جو حسینہ عالم بنی تھی پھر اسے فلموں میں لے لیا گیا۔ جگدیپ موہن کو خوش کر کے اسے مقابلہ حسن میں ہندوستان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جو لڑکیوں سے کچھ نہیں کرتی تھی وہ نہ تو مقابلہ عالمی حسن میں حصہ لے پاتی اور نہ ہی اسے فلموں میں چانس ملتا۔ اس کی ایجنسی جو اثر و رسوخ رکھتی تھی وہ ناقابل یقین تھا، اور اس کے علاوہ وہ بچوں میں بے حد بہت مقبول تھا، اور وہ ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، اور اس نے ایک 10 برس کے لڑکے کو فن منصوری کی تحقیقات میں سر فہرست کر دیا۔ اس کے علاوہ بچوں کو کھیلوں میں بھی رہنمائی کرتا تھا۔ دیگر گو حالات سے ایجنسی نے کام شروع کیا تھا، لیکن آج 13 برس کے بعد ایجنسی کے پاس درجنوں کے حساب سے مصنف، اداکار اور اداکارائیں، شاعرہ، تصور، مجسمہ ساز اور کلاسیکل رقص کرنے والی رقاصائیں اور بیلٹ ڈانسر وغیرہ بھی تھے۔ اس ایجنسی کی طویل فہرست میں نام درج کرانے یعنی ممبرشپ حاصل کرنے والے کامیابی کی زرعی سیڑھی پر پہلا قدم سمجھا جانے لگا، اور جب کوئی ایجنسی سے معاہدہ کر کے رکنیت کے فارم پر دستخط کر دیتا تو مختلف اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن غرض کے ہر ذریعہ ابلاغ کو استعمال کر کے اس کے نام کا ڈنکا بجا دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کا نام صوبہ کرناٹک، بہار اور بنگال تک تشہیر کیا جاتا۔ مثال کے طور پر انیل پرکاش کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جس نے اس ایجنسی کے وساطت سے ہی دن دونی رات چوگنی شہرت حاصل کی تھی۔ جگدیپ اینڈ سنس ایجنسی نے بالی ووڈ سن سلوڈ بلوارڈ کی ایک 7 منزلہ عمارت میں آدھی منزل گھیر رکھی تھی، باقی دوسری منزل ٹاٹا انٹرپرائزز کے تصرف میں تھی، جہاں انیل پرکاش کی تصاویر، پرستاروں کی ڈاک اور اس کی آمدنی کا حساب و کتاب کے علاوہ دوسرے امور بھی انجام پاتے، اور میں نے 60 سیٹ بلوارڈ سے آدرا آگے مین ڈرائیور میں اپنی گاڑی پارک کی اور پھر پیدل دفتر کی طرف چل دیا۔ ایجنسی کا دفتر یہاں سے 5-7 منٹ کی مسافت پر تھا، اور اس کے دفتر کے پاس کار پارکنگ ایک مسئلہ تھا۔ پٹیل بلڈنگ کے سامنے میرے دائیں ہاتھ پر جگدیپ موہن سنس ایجنسی کی عمارت تھی۔ جگدیپ موہن نے اس عمارت میں سب سے پہلے اپنا دفتر لیا تھا، اور جس کا رنگ و روگن پرانا ہو چکا تھا، اور اب وہ اس قسم کی 20ویں عمارت خریدنے پر قادر تھا، مگر شاید نیا 9 دن پرانا 100 دن کے مصداق یا پھر عہد و وفا نبھانے کے تقاضے کے مد نظر وہ ابھی تک اس میں قائم تھا، اور میرے بائیں ہاتھ اسٹیٹ بینک بلڈنگ کی 10 منزلہ عمارت پرانی ہو جانے کے باعث گرائی جا رہی تھی، اور اسے زور و شور سے منہدم کیا جا رہا تھا۔ صرف اسٹیٹ بینک کی عمارت ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں جتنی بھی پرانی شکستہ اور بوسیدہ عمارتیں تھیں وہ سب کی سب منہدم کی جا رہی تھیں۔ انہدام کے لیے کرین استعمال کیا جا رہا تھا، اور اسٹیٹ بینک کی عمارت کا ایک حصہ جو رہ گیا تھا وہ زمین بوس کیا جا رہا تھا۔ کرین کی تھوتنی سے ایک آہنی رسا لٹک رہا تھا، جس کے سرے پر ناشپاتی جیسا ایک زمین عریض گیند لٹک رہا تھا۔ تعمیراتی کاموں میں اس گیند کو مضارب کہا جاتا ہے، یعنی ضرب رسید کرنے والا۔ 1:28 ہو چکے تھے۔ اگر میں 1:30 بجے میں جگدیپ موہن سے ملنے نہ پہنچتا تو ممکن تھا کہ اس کی نکتہ چینی اور سرد محض سیکرٹری کسی فریج سے زیادہ سرد ایک جوان لڑکی جو لبو لہجے سے اس کی عمر کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ 4تھی منزل پر ایلیویٹر سے اترا۔ گالیچے اور راہداری کے کنارے شفاف شیشوں کے دروازے والے کمرے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے، اور میں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی پیشانی پر جگدیپ موہن ایجنسی کے پریزیڈنٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ناب گھما کر دستک دیے بغیر اندر چلا گیا، اور جس دروازے کی پیشانی پر جو بورڈ تھا
उस दरवाजे पर पियोन दिखाई नहीं दिया। शायद लंच करने गया था और बड़ी वसीओ अरीज कमरे में पतली कमर, तकोनी फ्राक और मॉडल गर्ल जैसे चेहरे वाली खूबसूरत लड़की बड़ी छोटी नज़र आ रही थी। वो कम वक्त मुझे फ़ौरन ही सेक्रेटरी के अंदरूनी कमरे में ले गई, जबकि मैं पूरी तरह उसका चेहरा और जिस्मानी नशीबो फराज को नज़रों में जज़ब कर नहीं पाया था और मैं उसके कुर्ब में खुशबू से मुअत्तर हो गया था। उसे किसी खुशबू की क्या ज़रूरत थी? जो उसने अपने लिबास पर स्प्रे किया हुआ था वो तो खुद खुशबू थी। यहाँ एक सेक्रेटरी के करीब स्विच बोर्ड पर एक और लड़की मौजूद थी। सेक्रेटरी खुद भी बासी रोटी की तरह सूखी हुई थी। मिस्टर देवा, और उसकी मुतरन्नम खेज आवाज़ फिजा में लहराई। सॉरी सर, मिस्टर देवा कुमार। मिस्टर जगदीप मोहन आपके मुंतज़िर हैं। इतना कहकर उसने दस्ती घड़ी में वक्त देखा और अगले लम्हे मैं जगदीप मोहन की हजूरी में पहुंच गया। जगदीप मोहन का लंबा चौड़ा कमरा नहायत नफासत से आरास्ता और पैरास्ता था। सब्ज़ रंग की दीवारें और दीवारों पर एजेंसी के मौकलों के ग्रुप फ़ोटो। एक दीवार पर अनिल प्रकाश की अबुल हौस अंदाज की रंगीन तस्वीर सजी हुई थी। दाएं बाएं उसके वो 14 सा रिकॉर्ड टंगे हुए थे जो अनिल प्रकाश के मास्टरपीस थे। एक तस्वीर के नीचे स्याह मेज़ के अकब में जगदीप मोहन बैठा हुआ था। मुझे एतराफ़ है कि कमरे के गोनागों रंगों के बावजूद उन सब से ज़्यादा लश्कारे मार रहा था। अपने लिबास की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत की वजह से। अखबारों और टेलीविज़न पर ना जाने उसे कितनी मर्तबा देख चुका था, मगर मुलाकात तो पहली मर्तबा हुई थी और उसकी हर अदा से हरारत और ज़िंदगी टपक रही थी, जो तस्वीर और फिल्म में कभी महसूस ना हुई थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वो अपनी कुर्सी से उठा और मेज़ के गिर्द चक्कर लगाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। तो उस इज़्ज़त पजीराई और पुरजोश इक़दाम पर मुझे हैरत और खुशी हुई। खुश आमदीद मिस्टर देवा कुमार, वो पुरजोश लहजे में बोला। मुझे खुशी है कि मैं मुल्क के नामूर सुरागर सांस से मिल रहा हूँ। हेलो मिस्टर जगदीप मोहन। और मैंने भी खुश दिली से कहा, आपने अपने कीमती वक़्त में मुलाकात के लिए दिया है, इसका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने उससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए देखा। उम्र 50 बरस के करीब, कामत में मेरे बराबर मगर जिस्म में मुझसे दुबला, भूरी पतलून, जर्दी माइल नीलगो कमीज और मौजूद तौर पर फिट कोट, सजे बाल कंपटियों के करीब से भूरे हो रहे थे। एक बात अजीब सी थी, मतवाज़ा और खलीक अंदाज के बावजूद मुझे गुमान हुआ जैसे वह सारी दुनिया को और मुझे हकारत की निगाह से देख रहा हो, और मैं ऐसी नज़रों और बातों का आदी था। और बैठो मिस्टर देवा कुमार, मेरे नाम का हरफ अदा करते हुए उसकी ज़बान कदरे तल में लाई। मेरी सेक्रेटरी ने बताया है कि आप गोपीनाथ के सिलसिले में आए हैं। क्या आप उसके वारसों के नुमाइंदे हैं? वारस? मुझे यह ख्याल भी नहीं आया था और ना ही रत्ना ने बताया था, और मैंने उससे सवाल किया तो वो कुछ और तरका छोड़ गया है। हाँ, मेरा ख्याल है कि 25-30 लाख के करीब। और उसने यूँ कहा कि गोया उसके नज़दीक 25-30 लाख मामूली सी रकम हो। फ़िलहाल मैं इस सिलसिले में हाज़िर नहीं हुआ, मैंने उसे जवाब दिया। तो आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं मिस्टर देवा कुमार? मैंने आन जहानी गोपीनाथ की मौत के मुतल्लिक़ कुछ मालूम करने आया हूँ। अच्छा, उसने असबात में सर हिला दिया। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? आपकी उससे काफ़ी गहरी शनासाई थी, ये सच है ना? जी हाँ, उसने जवाब दिया। हमारी दोस्ती बहुत अरसे से थी, ये हकीकत है। दरअसल मैं आपको ये बताने की जहमत देने हाज़िर हुआ हूँ कि कोई ऐसी बात हो जिससे ये गुमान हो सके कि उसकी मौत हादसाती तौर पर वाक़या ना हुई हो। मैंने उससे कहा, और उसकी मौत एक हादसे के सिवा और क्या हो सकती है? उसने हाथ लहराते हुए कहा। पुलिस ने भी यही नतीजा अखज़ किया है। दरअसल मौत 4 वजूहात की रहने मिन्नत है। मैंने कहा, क्यों? वो 4 वजूहात क्या हैं? क्या बताएंगे मिस्टर देवा कुमार? वो बोला, कुदरती वजूहात में बीमारी वगैरह। मैंने जवाब दिया, हादसा, खुदकुशी और कत्ल। और मैं आखिरी 3 वजूहात पर तफ्तीश कर रहा हूँ। क्या तुम उसके किसी रिश्तेदार की नुमाइंदगी कर रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर वो राज़ी होने लगा था और मैं उसके मामले की तह तक नहीं पहुँच रहा। जगदीप मोहन मुझे नई नई बातें समझा रहा था। मैं एक मुवक्किल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिसका नाम। मैं चुप हो गया। नामालूम बिना पर मैं उसे रत्ना कुमार का नाम बताते बताते रह गया। बस आप उसे एक मुवक्किल ही कह लें, मैंने कहा।
मैं नाम जानने की कोशिश नहीं करूंगा मिस्टर देवा कुमार। तुम्हारे मक्कल का नाम मेरे लिए के किसी दिलचस्पी का हामिल नहीं, वो बोला। जगदीप मोहन ने बुरा बनाए बगैर खुश दिली से कहा था। अलबत्ता उसकी आंखों में एक नामालूम सी चमक नमूदार हो गई। पुलिस को यकीन है कि मिस्टर गोपीनाथ की मौत इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर वाक़या हुई थी। मैंने अपना ख्याल ज़ाहिर किया, मगर जो बात मेरे इल्म में आई है वो ये कि डॉक्टर मुखर्जी के ज़ैर इलाज था और डॉक्टर मुखर्जी जो माहिर नफ्सियात है। क्या? और जगदीप मोहन इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे ज़बरदस्ती बरकी झटका लगा हो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपनी जगह 16 आने दुरुस्त है, मैं बोला। आप? और उसके चेहरे पर हैरत चिस्पा हो गई थी। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि वो डॉक्टर मुखर्जी के ज़ैर इलाज था? आप जानते हैं कि मैं एक सुरागर सा हूँ, इसलिए ये बात मेरे। लेकिन उसने तेजी से दरमियान में कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा तो ये ख्याल था कि ये बात आपके इल्म में यकीनन होगी। मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था, वो बोला। हैरत की बात है कि आप ऐसी अहम बात से बेखबर थे, मैंने कहा। ओह, और उसके लहजे में तासुफ सा था। गालबन आप ये समझते हैं कि गोपीनाथ ने खुदकुशी की है, क्यों यही बात है ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा, क्योंकि मैं अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ। वैसे आपकी उससे अक्सर मुलाकात रहती थी? हाँ, मेरी उससे रोज़ाना ही मुलाकात रहती थी। मैं आपके सवाल की गर्दो अगाइत जान गया हूँ। मेरा जवाब यह है कि वो किसी तरह भी मायूसी या खलजान का शिकार नहीं था, और मुझे यकीन है, बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि उसकी मौत इत्तफाकी हादसा थी। जब वो अपनी बात कह चुका तो मैंने पूछा, कत्ल के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? कत्ल? और उसने आंखें झिपका कर बंद कर लीं और उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और उस लफ्ज़ कत्ल पर अक्सर लोगों का रद्द अमल बड़ा अजीब और मज़का खीर होता है। बड़ा अजीब सवाल है। उसने चंद लम्हों के बाद आंखें खोल कर कहा, किसी को आखिर क्या पड़ी थी कि वो उसे कत्ल कर दे, रास्ते से हटा दे? टेलीफोन की घंटी अचानक बज उठी और वो जो कोई और बात कहने वाला था उसने नहीं कहा, और उसने मुझसे माजरत करके रिसीवर उठा लिया। मालूम नहीं दूसरी तरफ कौन था, और वो उससे बातें करने में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान मैं उसके खूबसूरत दफ्तर का गैर जायज़ा लेने लगा। जगदीप मोहन के पीछे 2 वसीअ अरीज़ खिड़कियाँ थीं, और जिनकी दरमियानी दीवार पर एक बंगाली मुसव्वर का मशहूर शाहकार ज़िंदगी और मौत अवीज़ा था। ये तस्वीर जगदीप मोहन ने उस वक़्त खरीदी थी जब वो मुसव्वर और उसकी एजेंसी का रुकन नहीं बना था, और उसने ये तस्वीर 50,000 रुपये में खरीदी थी। यूँ तो मैं भी मुसव्वरी का थोड़ा बहुत ज़ौक़ रखता हूँ और अक्सर तस्वीरी नुमाइशों में जाता रहता हूँ। सच्ची बात यह है कि मुझे उस तस्वीर में ऐसी कोई बात दिखाई ना दी जो उसे इतनी गरां कीमत पर ख़रीदा जाता। शायद आर्ट के नकादों और जानने वालों के लिए उसमें ऐसी कोई बात होगी, और उस तजर्दीदी शाहकार पर मुझे यूँ गुमान हुआ जैसे मुसव्वर रंगों से बुरश भर भर कर वराफ्तगी से इधर उधर छींटे मारता हो। 24 मुरबा फुट की तस्वीर मुझे ना तो कहीं ज़िंदगी नज़र आ रही थी और ना कहीं मौत। चीनी आंखों वाली प्रोफेसर दास गुप्ता की पोर्ट्रेट भी उनमें शामिल थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजकल जदीद मुआशी नज़रियात बखेर दिया करता था, और मैंने उसकी मुख्तलिफ़ किताबों में से किसी का मुताला ना किया था, क्योंकि मुझे उस मौजू से दिलचस्पी बिल्कुल ना थी। जगदीप मोहन ने खासी देर तक फ़ोन पर बात करने के बाद रिसीवर रख दिया था। गोपीनाथ की मौत चाहे जिस तरह भी वाक़या हुई हो, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तमाम मकानात की तफ्तीश करूं, मैंने कहा। इसलिए भी कि कत्ल भी एक ऐसा मकान है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सोचने और समझने की बात है। ये तो ठीक है, और उसने तेज़ी से सर हिलाया। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, गोपीनाथ का ना कोई दुश्मन नहीं था, और वो बड़ा नफीस, शाइस्ता और खलीक इंसान था। हर किसी से मोहब्बत और खंदा पेशानी और खलूस से पेश आता था। अपनी बात ख़त्म करके वो चंद लम्हों तक गोपीनाथ की शराफत के गुण गाता रहा। मैं सुनता रहा और खामोश था, और उसके सिवा चारा भी तो नहीं था। क्या गोपीनाथ और अनिल प्रकाश का कारपोरेशनों में शिराकत करते थे? मैंने पूछा। हाँ, वो दोनों पृथ्वी इंटरप्राइजेज बेशतर हिस्से के मालिक थे, बाकी हिस्से मेरी एजेंसी के थे। गोपीनाथ ने 3-4 जगह इनफरादी सरमायाकारी कर रखी थी,
جس سے اسے خاصا مالی فائدہ ہوتا تھا۔ ایک بات اور، کیا مسٹر انیل پرکاش سے ملاقات کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہو کیوں نہیں سکتا؟ اس نے جواب دیا، ذرا مشکل ہے، آپ خیال نہ کریں۔ مشکل کیوں اور کس لیے؟ اور میں نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بتائیں گے؟